I would like to call Mr. Rajiv Srivastava on stage, sir. Yes, we like to welcome Mr. Rajiv Srivastava. Memento will be given by Chandrakant, sir. Good evening, everyone. Welcome back after the tea break. We are now moving into the exciting segment of our program. I, Maitri Patel, will be hosting this session, Secrets of Holistic Living. Holistic living emphasizes balancing physical, mental, emotional, and spiritual well-being for overall health and happiness. It involves creating a lifestyle that supports a sense of wholeness and harmony in all aspects of life. So to discuss more on this topic, Secrets of Holistic Living, please join me in giving a warm welcome to Mr. L.D. Patel, Vice President of HSRC. So please, we invite you on stage. So friends, welcome back. And this session is about part 2 of Happy Principles, let us say. Right? And the previous session, only 2 things just, Vaibhav Agarwal Saab gave me feedback. If you consider yourself as a position holder, you cannot put off your hat. वो hat हमेशा रहती है ऊपर, मैं principal हूँ, 24 hours, right? If you consider it as role, you can, it will help you a lot. कि भाई अब मैं घर पे गया तो मैं principal नहीं हूँ ना, घर के principal अलग है, ठीक है? Very simple. तो इसे it solves so many issues, even home front also. जहाँ पर हमको जो रोल नहीं करना है, वो फ्रेम ऑफ माइंड से चलेंगे, then it will create, ठीक है ना? देखिए, मुझे पता चला कि घर में, मेरा खुद का एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैं बलसार रीजन ऑफिस में था, स्टेट बैंक का रीजनल मैनेजर, तो मुझे हर एक का फाइनेंशियल पावर्स होता है ना, तो मुझे 25,000 रुपया तक तो मैं विदाउट सेंडरी पर्पज आई हैड द डिस्क्रिशनरी पावर टू स्पेंड, ठीक है? किसी को पार्टी देना आता है, आई कैन गिव 25,000 तक का मुझे पावर है। 1 लाख तक का मैं डेट माफ कर सकता था। अब घर पे मुझे 10,000 की चीज मैं नहीं ले सकता हूँ, वहाँ पर देयर इज एन ऑडिटर, राइट? तो दिस ऑल क्रिएट्स प्रॉब्लम। तो आपका ऑफिस में पावर्स अलग है, घर पे अलग, यू हैव टू अराइव एट ए कंसेंसस, ठीक है ना? कंसेंसस के बाद यू कैन डू, ऑफिस में कंसेंसस नहीं, यू आर टॉप बॉस, यू कैन साइन दिस दैट लाइक दैट, दिस इज नॉट केस। सो दिस इफ यू अज्यूम इट एज ए रोल होल्डर, देन दिस वे ऑल्सो इट इज हेल्पफुल के यू कैन रिमेन इन प्रेजेंट। अभी आपके सामने कौन है, इसके हिसाब से आपका रोल है ना। पिताजी के सामने आप डॉटर है या सन है, तो उस वक्त वो रोल के हिसाब से इफ यू अटेंड, आपका बहुत जीवन सुख शांतिमय होता है। और वैसे हमारे तनख्वाह तो वहाँ पर चेयर की देते हैं ना, घर के लिए तो इंस्टीट्यूशन डजंट एक्सपेक्ट यू टू वरी अबाउट दैट एट दी होम, ओके? दिस वे, this is a very deep session. I'll share entire chapter of Uday Parikh plus all these PowerPoints, and you are free to talk to me in case of anything. Okay, we have tried to simplify as far as possible, but this will help you a lot. And secondly, another aspect is you have many subordinates, you have given them the role, and how to improve their role efficacy. That will be your job. Improving their role efficacy to
15%, बट मानिए कि 15% आपके सबॉर्डिनेट का रोल एफिकेसी बढ़ाते हो, तो ऐसे तो 10 लोग हैं, तो आपकी खुद बढ़ जाएगी और आपका स्ट्रेस वगैरह बहुत कम हो जाएगा. So this both ways this has to be taken, improving my role efficacy and improving the role efficacy of my subordinates. These two are things. Those slides also I will send you, right? Because here, because of paucity of time, we have just introduced you to this concept, right? Now we are moving to the another subject, secrets of holistic as a person, right? As we discussed that in case of, again, that example of Mercedes, the weaker part will affect you, right? Mercedes में हवा कम है तो Mercedes कुछ काम की नहीं, आपको वो ड्रैग करेगी. तो इन योर लाइफ ऑल्सो जहाँ पर वीकनेस है हमारे, वो दैट विड्रॉज यू, मतलब कि दैट मेक्स यू make a just give you pains in your heart, right? So there are certain things we'll blend Dada Bhagwan philosophy also. We hereby on this moment I thank one friend of Vasant Bhai Patel. I'll tell you, his name was Jayanti Bhai Shah, a industrialist in Mumbai. Vasant Bhai knew him. I have not seen him, but Vasant Bhai about say I think 7-8 years before he went. And our trustee शुक्ला जी, तो उनके टेबल पर एक बुक पढ़ी थी, उसका नाम था अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी, राइट? वो टाइप्ड थी, टाइप्ड नोटबुक, ठीक है? तो शुक्ला जी ने उनको पूछा कि मैं ले जाऊं, तो कहे हाँ ले जाओ, मैंने कई कॉपी टाइप करवाई है और उसको मुझे लोग पढ़ाने के लिए बुलाते हैं इंडस्ट्रीज़ में, कॉरपोरेशंस में, तो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है? तो लेके आए, शुक्ला साहब ने कहा कि भाई देखो ये बुक मैंने पढ़ी नहीं है मगर तुम पढ़ना, ठीक है? उनका ये हमारा वो है एग्रीमेंट कि नेवर आस्क मी टू रीड, ओके रीड योरसेल्फ एंड देन टेल मी. तो मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये अगर बुक मुझे 20 साल पहले मिली होती तो मैं कुछ और होता. रियली आई टेल यू. पहला तो उसका टाइटल कि अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी, और अप्लाइड क्या है कि अप्लाइड चीज़ों में मुझे पहले से रस है, ठीक है ना? कुछ अप्लाई करते हो तब उसका टेस्ट आता है ना. तो मानिए कि रामायण, महाभारत हम सुनते हैं, नो बाव, इसमें मुझे अप्लाई क्या करना है, कैसे करना है, वो बहुत डिफिकल्ट चीज़ है. मानिए कि लिखा है रामायण में कि 50 साल की उम्र में वन में जाओ, ठीक है ना, वानप्रस्थाश्रम. अब मैं जाऊं तो वन में पानी भी नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना, पूरा वन चेंज हो गया है, तभी मैं नहीं जा सकता हूँ, भले ही उसमें लिखा है टाइम्स हैव चेंज्ड. तो कंटेम्पररी कुछ नहीं, बहुत मुसीबत होती है इवन इफ आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट. तो अप्लाइड जो पोर्शन है, तो सबसे बड़ी चीज़ मैंने दादा भगवान के पास देखी, वो अप्लाइड थी. वॉट एवर ही टॉक्ड ही अप्लाइड इन हिज लाइफ, एंड दैट कैन बी अप्लाइड इन योर लाइफ ऑल्सो. दिस इज वाई इट इज कॉल्ड साइंस. साइंस में समय साइंटिस्ट का नाम अभी याद नहीं है. H2O किसने फॉर्मूला बनाया याद नहीं है, मुझे अभी याद नहीं है, आपको भी शायद नहीं होगा, ठीक है ना? बट दैट इज वंस फॉर ऑल. दिस इज अ साइंस ऑफ लाइफ एंड लिविंग, राइट? दैट इज द मिशन. वी आर ट्राइंग टू लर्न दिस एंड अगेन वी वांट टू propagate it. And once it, because it is science, it need not be studied again and again. Once you comprehend it properly, then it is a part of your personality, your personal understanding. So this way, blending the modern research with this applied aspects. Dada Bhagwan was not a sannyasi. I met him around, I was 28 years old. I went to him just because I came to know. वो कहते हैं कि मेरा ज्ञान समझने से तुम्हारा टेंशन चला जाएगा. अब मैं तो बहुत टेंशन में था, स्टेट बैंक का फाइनेंस ऑफिसर था उस उम्र में. फाइनेंस वाला को तो टेंशन कभी ख़त्म ही नहीं होता है. तो मैंने सोचा है पढ़े कि ये आदमी जहाँ है वहाँ मैं उसको मिलूँगा, एक्सेप्ट ही शुड बी नॉट बी आउट ऑफ इंडिया. दैट इज़ हाउ आई मेट हिम. कहीं भी होंगे मैं मिलूँगा, ऐसा कोई कहता ही नहीं है कि भाई टेंशन ख़त्म हो.
I won't believe, after meeting him, then I attended so many, because he has very, very good habit. He will never give a lecture. That I liked most. Most of the religion, there is a lecture. वो दादा भगवान कहते कि लेक्चर का कोई मतलब मॉडर्न जमाने में नहीं था, नहीं है, पहले था, जब इलिटरेसी थी, तब लोग पढ़ना नहीं जानते थे. अभी लेक्चर का कोई मतलब नहीं है. जैसे पीएचडी में लेक्चर खास नहीं होते. आप में से कई लोगों ने पीएचडी किए हैं. आप सॉल्यूशन लो, प्रोफेसर को पूछो, गाइड को क्या क्या प्रॉब्लम है. दैट इज हाउ ही ऑल्सो फंक्शन. अनलेस यू आस्क ही विल नेवर स्पीक. ओके. तो कई लोग ऐसे तो है ना जिनको इंटरेस्ट है कि ऐसे पूछने. नॉर्मली पीपल डोंट अलाउ यू टू आस्क. मोस्ट ऑफ द रिलीजियस लीडर्स, प्लीज रिमेंबर, एंड मैनी रिलीजियस मेंबर्स, इफ यू आस्क दे विल बिकम एंग्री. वो कहते मैं जो कहता हूँ सुनो. ये कहते हैं कि तुम पूछो तो मैं बोलूँगा, नहीं तो तुम बोलो. तो आई लाइक दैट. एंड अकॉर्डिंगली दिस जयंती भाई ऑल्सो, he met him number of times and he was asking him many questions of practical life. Based upon his life experiences and learnings from various books as well as these personal discussions, right? He wrote these short notes. We are giving to you this book, don't worry. We are giving. It is in your kit, it is being given to you. Okay? I'll just introduce this kind of introduction to the book only, right? राइट. आप सब पढ़े लिखे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं. वो इंग्लिश में ओरिजिनल है. बाद में हमने उसका हिंदी भी किया और गुजराती भी किया और शायद और लैंग्वेज में भी करेंगे. बट इट इज़ गुड. आई फाउंड इट अप्लाइड थिंग्स. ओके. तो क्विकली आई विल इंट्रोड्यूस यू सर स्मॉल चैप्टर्स. आई हैव नॉट गिवन एनी डिस्क्रिप्शन बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम. ही सेज one is the acceptance. Most of our problems are because of not accepting the reality. but reality तो accept करनी पड़ेगी ना. और accept, इसमें दादा भगवान क्या कहते हैं कि after happening you accept. ठीक है ना. कोई चीज हो गई तब तक आप उसको एक्सेप्ट मत करो, मगर हो गई the next moment you accept it. Because certain things you cannot alter, right? जब तक नहीं होती तब पूरा जोर लगाओ. ठीक है ना. Accepting thing. और दादा has given another example कि आपकी उंगली कट गई. That is not a दुख. Another example he has given. जिसका उपाय नहीं वो दुख नहीं है, he says. Because you cannot grow it. चली गई तो चली गई, फिर accept it. अब 4 उंगलियों से काम ले लो, हो गया. यू कैनॉट अंडू दिस. अंडू जो है ना कंप्यूटर में आती है, यहाँ नहीं है इसमें. तो सर्टन थिंग्स, हाँ, दिस वे व्हेन टू एक्सेप्ट, एडवांस में नहीं. आफ्टर इट हैज हैपेंड डिस्पाइट ऑल योर एफर्ट्स, इट हैज हैपेंड, राइट. जो भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्य, राइट. तो एक्सेप्ट इट वंस इट हैज हैपेंड. ठीक है. प्रारब्धवाद नहीं कहते हो. दादा भगवान में इसमें डिफरेंस है. इसे जब तक नहीं हो गया हो तब तक आप जोरों से लगा रहो जिस डायरेक्शन में करना है. देखो हो गया, आपने फंक्शन किया एक, हाँ, आनंद मेला, और बारिश आ गई. अब क्या करते हो? कैन यू डू एनीथिंग? आपने कुछ भी कितने प्रयत्न करे हो, कुछ भी आपने बारिश नहीं गिराई है ना. आप क्या कर सकते हो उसमें? एक्सेप्टिंग, दिस इज वन थिंग यू कैन थिंक ओवर नंबर ऑफ टाइम. एक्सेप्टिंग में कई चीज़ें हैं. एक्सेप्टिंग योर ओन पर्सनालिटी फर्स्ट ऑफ ऑल. मैनी पीपल कैरीड दिस बर्डन. मैं काला की हूँ, मैं नाटा की हूँ, मैं एक ज्ञाति में मैंने क्यों जन्म लिया. फॉरगेट इट. नोबडी आस्क यू. इन मॉडर्न जनरेशन नोबडी आस्क योर सरनेम. अब तो पिताजी का नाम ही नहीं लिखते हैं, तो सरनेम तो कहाँ आने वाली है. सो डोंट वरी. सो दीज आर गिवन थिंग्स. ठीक है ना. जो गिवन है, एक्सेप्टिंग, बिकॉज इट ड्रॉज योर एनर्जी, इट लीक्स योर लॉट ऑफ एनर्जीज बाय नॉट एक्सेप्टिंग द रियलिटीज ऑफ लाइफ, एस्पेशली गिवन बाय द नेचर, राइट. दिस इज हेल्पफुल टू अस, राइट. डिटेल्स यू कैन सी द चैप्टर. सेकंड थिंग, ओपिनियन. नाउ यू कैन नेवर फाइंड ए पर्सन अदर देन हैविंग ए ओपिनियन. माई experience, I tell you, as an administrator, right, for many years, administrator should not have a opinion.
If you have an opinion, your administration will be flawed. एडमिनिस्ट्रेशन अगर एडमिनिस्ट्रेटर कभी ओपिनियन रखेगा नहीं तो बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होगा. वाई? बिकॉज आई टेल यू रीजन्स. आज जनरली क्या करते हैं आप एक इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करते हैं. पीपल विल स्टार्ट गिविंग यू ओपिनियंस अबाउट अदर्स. देखना, हाँ मैडम ये तो ऐसा है, उसने तो ऐसा किया था, वो ऐसा है, उसके संभाल के रहना, ये ट्रस्टी ऐसा है. टिल विदाउट इन्वाइटिंग दे विल गो ऑन गिविंग ओपिनियंस, राइट? एंड इफ यू टेक इट, you will be in a trouble as an administrator. Why? Because when a head of the department is changed, किसी नया आदमी आता है, गौर साहब अब एडवाइजर है, पहले प्रिंसिपल थे, अब नए प्रिंसिपल आए, तब कई लोग सोचते हैं कि मैं मेरा वर्तन बदल दूंगा. अब नए साहब के आ गए, मेरा इंप्रेशन, आई विल इम्प्रूव माई इंप्रेशन बिफोर द न्यू बॉस. He decides within himself. अब आप वो borrowed opinion लिया, वो expiry date का opinion है. पुराने साहब के साथ जो उसका था वो opinion है, जो अभी आपके साथ he want to improve. He will try also. He will tell sometimes कि भाई मैं वैसा नहीं हूँ. इसलिए never borrow opinion. Whenever you change any institution, I have observed this, I have tried this, experimented this, and it has worked wonders. So many naughty staff, right? I was given a branch of State Bank of India as a head, which had largest number of complaints in state of Gujarat. Okay, they threw me there. I said, okay, no issue, accept. ठीक है ना, कुछ तो सीखेंगे, इससे खराब तो होने वाला नहीं. इससे खराब कहाँ होगा? स्टेट में नंबर है उसका कंप्लेंट में, तो इससे खराब तो होने वाला नहीं है. ठीक है ना? तो मैं जो कुछ भी करूँगा, समथिंग पॉजिटिव विल बी देयर, राइट और नॉट? देन यू लर्न सो मेनी थिंग्स. सो ओपिनियन इज ए ग्रेटेस्ट बैरियर इन एडमिनिस्ट्रेशन. पीपल वांट टू चेंज विथ न्यू बॉसेस, राइट? रिमेंबर, नेवर आस्क एनीबॉडीज ओपिनियन अबाउट एनीबॉडी. ये कैसा आदमी है, तुम देखो तुम्हारे साथ वो अच्छा रहेगा. पीपल बिहेव डिफरेंटली विद अंडर डिफरेंट बॉसेस. यू मस्ट हैव सीन श्रीवास्तव साहब. ठीक है ना? तो आपके अंदर से ऐसा आपके साथ बिहेव करते हैं. और अभी लेटेस्ट रिसर्च इन साइकोलॉजी सेज पीपल बिहेव अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन अबाउट देम. आई वुड रिमेंबर, देखिए आप आपकी जिंदगी में सोच देख लेना है. पीपल बिहेव अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन अबाउट देम. यू सी, दिस इज प्रूवन रिसर्च, राइट? तो क्या है, कहाँ पर भूल है? मेरे में है ना, मैंने ओपिनियन रखा कि आदमी ऐसा है. नेवर हैव इट, अदरवाइज दैट विल बी प्री कंडीशन योर माइंड एंड यू विल नॉट बी एबल टू टेक रेशनल राइट जजमेंट. दिस इज वंडरफुल थिंग, आई टेल यू. तो बहुत डीप है. किसी भी चीज़ के बारे में ओपिनियन मत रखो. ऐसा तो दादा तो कहते कि आप केले से सर्दी होती है. मैंने कहा डोंट पिक अप दिस ओपिनियन. यार तुम्हें सर्दी होगी, मुझे होती है, इससे मैं आपको कहूँगा. देयर इज नथिंग लाइक दैट. सो मैनी थिंग्स वी कीप ओपिनियन. ठीक है ना? अभी लेटेस्ट रिसर्च बताता है कि पीपल ईट विथ ए गिल्टी कॉन्शियस. देखो नया प्रॉब्लम आ रहा है सर, कि वो बटर खाता है और उससे गिल्टी होता है, अरे यार मेरा वजन बढ़ जाएगा, ये बटर नहीं खाना चाहिए. तो खाता तो है, समझ लो, क्योंकि वो उससे रहा नहीं जाता है, वो देखता है तो खा लेता है. तो तुमने बटर के सामने जो ओपिनियन रखा, दैट ओपिनियन विल क्रिएट सिमिलर इफेक्ट्स विच यू हैव बिल्ट. ये बॉडी में कैपेसिटी है कि ह्यूमन बॉडी कैन क्रिएट केमिकल्स एज पर इट्स थिंकिंग. आप देखो, आदि आप बोलो अंदर 10 बार नींबू शब्द बोलो. आप 10 बार नींबू शब्द बोलो अंदर, आपके अंदर नींबू का स्वाद आएगा नहीं आएगा? वो कहाँ से पैदा हुआ? पैदा हुआ तुम्हारे थिंकिंग से. तो बॉडी सब कुछ बना सकता है. कोलेस्टेरॉल थिंकिंग, बटर खाए कोलेस्टेरॉल बढ़े तो बढ़ेगा ही तुम्हारा. यू आर एंडोर्सिंग दैट. सो ओपिनियन इज ए वंडरफुल थिंग. तो बड़ा साइंस है. मैं छोटी आपको जस्ट आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू. देन यस, सॉरी, डिफेंस और सेफ्टी. जनरली वी आर इन ए डिफेंसिव मोड कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक है, राइट?
तो कोई भी आपको कुछ भी कहेगा, यू बिकम डिफेंसिव. So if you become defensive in your mind, then your words will be defensive. आप जैसे बिलीफ ऐसा, you will speak, word will come like that. ठीक है ना? तो डिफेंसिव, और इन द प्रोसेस यू ऑफेंड somebody. ये प्रॉब्लम है. डिफेंस करते करते आपको कब पता चलता है कि वो गियर बदल गया और आपने उसको ऑफेंड कर दिया. सो दैट वी हैव टू थिंक कि डिफेंडिंग, वेर एवर यू डिफेंड, टू व्हाट एक्सटेंड यू हैव टू डिफेंड, वो देख लेना है. ठीक है ना? और स्पेशली वन थिंग आई विल टेल यू, मैं जब पहली बार मैनेजर हुआ तो आप मेरी भाषा में आप लोग मैनेजर तो हैं, आई टेल यू, यू आर मैनेजिंग सो मेनी थिंग्स, राइट? तो मैंने कहा ना, मैं प्रीमेच्योरली बैंक मेड मी मैनेजर. तो मैंने सोचा कि मैं कौन मुझे एडवाइस देगा. यू शुड हैव सम एडवाइज़र इन योर लाइफ. आप कितने भी हो, ठीक है ना, एडवाइज़र अच्छे बिल्कुल ज़रूरत होती है. समझ लीजिए ये वर्ल्ड इतना कॉम्प्लेक्स है, अभी कभी पूरा हम लोग समझ पाएंगे नहीं. कोई ना कोई आपका होना चाहिए मेंटर, जिंदा, ठीक है ना. तो आपको गाइड करेगा. तो मैं गया, मैंने कहा चलो एक जो ट्रेनिंग लर्निंग डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन होती है स्टेट बैंक में, तो मैं वहाँ गया कि यार कोई फैकल्टी को पूछते हैं कि क्या करूँ यार मैं ऑल ऑफ ए सडन, राइट? तो उसने कहा कि दो चीज़ करना. इफ़ यू आर गोइंग एज ए हेड, ठीक है, यू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी. उन्होंने मेरे एक एग्जाम्पल दिया है कि लाला भाई तुम्हारी ब्रांच में एक चूहा मर गया, तो तुम्हें कहना है आई एम रिस्पॉन्सिबल. अगर नहीं कहते हो तो पीपल विल प्रूव दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल. हमारे स्कूल के बस में टायर पंचर हो गया तो लोग कहेंगे कि नहीं भाई प्रिंसिपल कैसी बस रखता है, कहेंगे नहीं कहेंगे. तो उसका सॉल्यूशन करो. डोंट डिफेंड योर सेल्फ अननेसेसरली. ठीक है ना? एक्सेप्ट इट, राइट? सो दिस विल सेव यू फ्रॉम सो मेनी इश्यूज, राइट? उपाय करते हैं भाई, ये हो गया ठीक है कर देंगे, राइट? सो डिफेंसिव होने में कितना कहाँ तक जाना, कहाँ तक नहीं जाना, राइट? दिस इज वेरी, पीपल एक्सेप्ट वंस यू से नो नो आई एम सॉरी दिस हैज हैपेंड. आपको पता भी नहीं होगा, ठीक है ना, तो कह देने में एक्सेप्ट कर देना है, कोई हमें कुछ नहीं करने वाला है, राइट? तो ये चीज़. देन कंटेम्पलेशन ऑन आवर फॉल्ट होगा ही. देखिए हम कोई पूरा सर्वज्ञ नहीं है, ये दुनिया इतनी कॉम्प्लेक्स है. तो शाम को सोच लो क्या हुआ और कैसे हुआ, हाउ आई विल अवॉइड रिपीट. ओके, उसका रिपीट नहीं होने दूंगा, मैं ट्राई करूँगी, दैट्स ऑल, राइट? मगर उसको अगर डिफेंड करते हैं तो फिर वही आता रहेगा, ठीक है ना? कंटेम्पलेशन ऑन आवर फॉल्ट. चैरिटी, देखिए चैरिटी इज अनदर थिंग. आप याद करो कि आप जब पढ़ते थे 11th 12th में, इसके साथ के कितने लोग प्रिंसिपल हुए हैं आपसे जो होशियार थे पढ़ने में, ठीक है ना? दे हैव नॉट बीन एबल टू रीच. तो आप मानो या ना मानो, देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ पुण्य और पाप जो समय के बाद रिजल्ट देता है. वो क्या करता है, कम मेहनत में ज़्यादा फल देता है. पुण्यवान जल्दी पास हो जाएगा, इतना ही होता है. वो मेहनत तो करनी पड़ती है तो किसी को, ठीक है ना, ठीक है, राइट? आप देखना कुछ किया है, कुछ चैरिटी डज नॉट मीन ओनली मनी. एवरी पोजीशन देयर इज ए स्कोप फॉर चैरिटी. किसी को सच्ची एडवाइस देना. देखिए आई टेल यू, आई रिमेंबर माई टीचर्स एट प्रेजेंट. जब आपको मैं देखता हूँ, मेरे शिक्षक मुझे याद आता है, इतना दे हैव ओबलाइज्ड मी. मैं जो कुछ हूँ किनकी वजह से हूँ. एक मेरी टीचर थी, मैं पहले स्टैंडर्ड में, मुझे पता नहीं पढ़ता हूँ, वो मुझे पकड़ के टेढ़ी न ले जाए स्कूल में. वो मुझे पता ही नहीं पहले मैं पढ़ा हूँ नहीं पढ़ा हूँ, वो ले जाती. मैं सोचा मैं तो घूमने जा रहा हूँ मैं सीधा मैं दूसरे में डाल दिया उसने. देयर आर पीपल, राइट, गुड टीचर्स
तो यू आर इन दैट सेंस, बिकॉज पीपल आर ऑब्जर्विंग यू एंड दे लर्न from you without your telling. They observe your character, they observe your dressing pattern, they observe your how do you talk, how do you solve the problems. Even your junior staff, they observe you. And आप देखेंगे, मैंने मार्क किया है भंडारी साहब, आप जब पहली बार प्रिंसिपल होते हैं तो आपकी स्टाइल में आपके पहले के प्रिंसिपल का असर होता है, ठीक है ना? तो ऐसे गौर साहब के अंडर में जितने प्रिंसिपल हुए वो सब आपकी स्टाइल में ऑटोमेटिक आ जाता है. तो पीपल आर गेटिंग डेवलप बाय ऑब्जर्विंग यू. यू आर बीइंग ऑब्जर्व बाय सो मेनी पीपल, राइट? दिस विल हैपन, दिस इज देयर एवरीवेयर. पीपल लर्न बाय ऑब्जर्विंग. तो यू आर टीचिंग द पीपल विदाउट टीचिंग, राइट? लीडिंग बाय एग्जाम्पल्स, राइट? So this is a kind of charity, right? Say all management starts with self-management, they say. Basic principle of management is managing yourself, first of all. ठीक? तो that is a charity. ज्ञान देना सबसे दादा ने 4 दान कहा है. हाँ? First is आहार दान, giving somebody food. That is a आहार दान. Okay? Second, giving medicines. Second दान. या तो आरोग्य का ज्ञान देते हो, दैट इज ए, आप बच्चों को दे सकते हो ना ज्ञान, आरोग्य, हाउ टू रिमेन हेल्दी, दैट इज ए ज्ञान. ओके, इट इज बेटर देन गिविंग फूड. ठीक है और नहीं, राइट? तो आपकी फूड हैबिट्स भी ऐसी हो, देखेंगे लोग कि साहब क्या खाते हैं, क्या करते हैं वगैरह, एवरीथिंग. देन आहार दान, औषध दान, देन आता है ज्ञान दान. तो आप तीसरी जगह पर हो, समझ लीजिए, राइट? जो आपसे कई लोग सीखते हैं, तो जितना वो सीखेंगे बहुत बड़ा ज्ञान है. इमीडिएटली नेक्स्ट लाइफ और इवन दिस लाइफ यू विल सी द रिजल्ट्स, राइट? यू विल गेट फर्दर ओपनिंग्स इन योर लाइफ. एंड नेक्स्ट लाइफ आपको पढ़ा, जो माँ बाप अच्छी तरह से पढ़ाएंगे वो जगह पर आपका जन्म होता है. ओके, नेचर नेवर कीप्स थिंग्स इन देम, दे ऑलवेज दे डाइवर्ट द रिजल्ट्स टू यू, दे गिव यू द रिजल्ट्स. सो चैरिटी वन थिंग. अभयदान इज लास्ट, किसी का भय दूर करना, ठीक है ना? दैट ऑल्सो विद ए राइट नॉलेज. मोस्ट ऑफ आवर फियर्स आर ड्यू टू इनअप्रोप्रिएट नॉलेज, रॉन्गफुल नॉलेज. तो भी आप कर रहे हो कि सबसे फियर दूर करने का उपाय क्या है? राइट नॉलेज. राइट नॉलेज, राइट? दैट इज वन थिंग. देन ग्रेटिट्यूड, नेवर फॉरगेट. आप जहाँ पर हो किसी की वजह से हो, ठीक है ना? मन से याद करना है, ठीक है ना? तो वो ग्रेटिट्यूड आप, तो आपके लिए तो बहुत चीज़, कितने बच्चे आपको याद करते होंगे, आपको पता भी नहीं होगा, राइट? फॉर यू ऑल्सो देयर आर पीपल जिसकी वजह से आप हो. तो ग्रेटिट्यूड इज़ वन थिंग, सो दैट इट गिव्स यू सो मनी अपॉर्चुनिटी फॉर फर्दर डेवलपमेंट. आप अगर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग नहीं है, छुपाना नहीं है, कहते हैं कि गुरु को छुपाना नहीं है, इसे शास्त्र में कहते हैं, इसे दर्शन आवरण कर्म लगता है. मैं तो मेरे अपने आप में हो गया तपोवन का प्रिंसिपल, ऐसा नहीं कहना है. ठीक है ना? एक्सेप्ट करना है. क्या है, कोई भी पढ़ के नहीं आया है, किसी ने. हमारे वसंत बार बार कहते, मैं जीवन भारती में पढ़ा हूँ, जिसका एम था सर्वांगी. देयर मोटो, स्कूल मोटो वाज क्या? सर्वांगी केळवणी, बराबर? दाखो. नाउ दिस स्टूडेंट ऑफ से 60 ईयर्स 70 ईयर्स बिफोर, अभी तो 90 साल की उम्र चल रही है, तो 80 साल पहले जो सर्वांगी केळवणी જેનો મોટો હતો, મોરારજી દેસાઈ જેના ટ્રસ્ટી હતા. આ મોરારજી દેસાઈના ગુણ એમનામાં દેખાય છે કે નથી દેખાતા તમને? ડુ યુ સી હિઝ એટ્રીબ્યુટ્સ? હી ઇઝ હેલ્ધી એટ ધ એજ ઓફ 89. મોરારજી વોઝ હેલ્ધી, કરેક્ટ ઓર નોટ? You see, today only I recollect it. Okay, Moraji was highly disciplined about his life, personal life. ठीक है ना? जब बड़ा प्रधान हुए, पूरे देश को पता चला, रात 12 बजे रिजल्ट आया था उस वक्त. मोरारजी को पता नहीं है, he was sleeping. सुबह में किसी ने बताया कि आप बड़ा प्रधान हो गए. ठीक है. तो like that, see, तो but you will find this kind of things. So now he has created an institution called होलिस्टिक साइंस रिसर्च सेंटर. स्कूल में जो मोटो था वो वर्ड आया का नहीं आया? आता है, राइट? सो देन ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस, राइट? फॉरगिवनेस,
draws lot of our energy if you don't forgive, right? Forgiving is a very important thing. And if we forgive, then God will forgive us. Very simple. अब किसी का मिस्टेक नहीं है, ऐसा आदमी जिंदगी में कोई होगा नहीं. किसी कोई भूल नहीं है, वो तो सीधा मोक्ष में जाता है. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सनातन धर्म. 100% डिफेक्ट फ्री पर्सन गोज टू लिबरेशन. हमारा मोक्ष नहीं हुआ है मतलब कि आप सब में कोई ना कोई डिफेक्ट है. वो डिफेक्ट आप लोगों के साथ काम करो तो उसमें कुछ ना कुछ होगी, तो आप भी अपनी भी एक्सेप्ट करो, दूसरों की भी एक्सेप्ट करो और जस्ट फाइंड आउट ए वे. दिस विल हेल्प अस ए लॉट. कोई भी आपको 100% आदमी मिलने वाला नहीं है ही नहीं, है ही नहीं, इसलिए नहीं मिलने वाला है. वेरी सिंपल. आप केवल जानते नहीं हैं, ठीक है ना. देन पॉजिटिव आउटलुक, राइट. तो पॉजिटिव की बहुत बातें होती है, बट थिंग इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव आर ऑलवेज गो टुगेदर. दैट इज वाई वेर एवर नेगेटिव थिंग्स, नेगेटिव थॉट कम टू अस, देयर मस्ट बी अदर साइड, सम बेनिफिट विल बी देयर. आप देखना, देखिए कोरोना, ठीक है ना. अब कोरोना तो नेगेटिव चीज़ है, फायदा कितना हुआ, पूरा ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुआ, नहीं हुआ, ठीक है ना. अगर कोरोना नहीं होता, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, नहीं होता तो नोबडी वुड हैव इन्वेंटेड दिस, ठीक है ना. सो मैनी थिंग्स. हमारे एक यहाँ पर एक फिलोसॉफी के प्रोफेसर आते थे, डॉक्टर नितिन व्यास, MS यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. उस वक्त कोरोना था, बोलते नहीं ये काम करना है, ठीक, वॉलंटरली, ये चार्ज, नो मनी, ठीक है. नहीं लाला भाई आ जाओ, बैठ के काम करेंगे, वुड कम. तो उन्होंने कहा कि लाला भाई आफ्टर कोरोना वर्ल्ड विल बिकम थॉटफुल, मोर थॉटफुल. देखो, दिस वाज हिज विजन. कोरोना के बाद, बिकॉज उसको कंपल्सरीली एक जगह और बिठा देती है कुदरत कि तुम घर के बाहर मत जाओ, तो फिर क्या है, सोचना उसका शुरू होता है. वी कम्स आउट ऑफ रूटीन, ठीक है ना. सो मैनी थिंग्स विच वी मे नॉट नो. पॉजिटिव आउटलुक, प्योरिफिकेशन ऑफ डिज़ायर. मैनी डिज़ायर्स वी हैव, बट वी हैव टू कंटेम्पलेट अपॉन इट कि मेरी ये डिज़ायर वाजबी है नहीं है, ठीक है ना. क्योंकि डिज़ायर इज कनेक्टेड विथ पुण्य पाप. तो टेक्निकल की चीज़ क्या है कि आपकी राइटफुल डिज़ायर हो या रॉन्गफुल डिज़ायर हो, इट इज़ ए चेक. आप चेक लिखते हो, आपके पास अकाउंट में पैसा है, आप वो पैसे से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना, बैलेंस है. तो डिज़ायर and requisite punya, then your desire gets fulfilled. Good desire or bad desire. दादा भगवान कहते हैं कि अगर कोई किस्सा कातरू है, पिक पॉकेट, उसका भी अगर पुण्य नहीं है तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, राइट. द वर्ल्ड इज लाइक दैट, बट दैट इज हाउ. तो कई चीज़ें इससे हमें, वी कैन रिव्यू अवर डिज़ायर्स एवरी 3 months, एवरी 6 months, कि सर्टन थिंग्स मे नॉट बी फुलफिल्ड, राइट. We have to accept wherever purification, whether it is pure, whether it is without hindering somebody, right. कई चीज़ें ऐसी होती है कि सपोज कि मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ और आप प्रिंसिपल हो, अब मैं डिज़ायर रखूँ कि मुझे प्रिंसिपल होना है, ठीक है. आई हैव सीन टू दिस एक्सटेंट, आई वर्कड इन प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो, आई टेल यू. तो क्या करते हैं लोग, वो अपने से ऊपर वाला जो फर्स्ट है ना, उसको उठाने का प्रयत्न करते हैं, सो दैट आई कैन बी प्रमोटेड. दिस ए बैड डिज़ायर, करेक्ट और नॉट. इफ यू आर क्वालिफाइड, यू गो टू अदर इंस्टीट्यूशन. व्हाई डू यू डू दिस? आई हैव सीन दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज देयर इज वन पोजिशन ओनली. दिस शुड नॉट टेक द, ओके, दिस शुड नॉट हैपन, राइट. एंड विजन ऑफ द वर्ल्ड एज इट इज़. ये देखिए, ये अपना जो ओपिनियन है, अपना बिलीफ सिस्टम है, इसकी वजह से हम लोग भी वॉट एवर द वर्ल्ड वी सी एज इट इज़ हम लोग नहीं देखते हैं, राइट. इफ यू हैव नो प्रिजुडिस, प्रिजुडिस वर्ड ऑल ऑफ यू नो, प्रिजुडिस इफ यू एनालाइज, राइट, एनालाइज, प्रीजुडिस, प्री डैश जुडिस. तो गिविंग ए डिसीजन बिफोर विदाउट हियरिंग द केस, पहले डिसाइड कर देगी ये तो ऐसा है, ठीक है. उसको साइकोलॉजी में भी देयर इज वन टर्म, सम जनरलाइजेशन और समथिंग दे कॉल इट. देन choiceless, this comes in the part of acceptance. There is no choice.
right? There are certain parts in your life, there is no choice. Or after certain time, there is no choice. शादी हो गई, फिर then don't look कि भाई ये होना चाहिए था, वो forget it, right? Everything, like job, आप job में you already landed, then no choice. So long as you are there, okay, then only you will be able to work. Otherwise, you will not be able to work. ठीक है ना? Illusion. Believe me or not, this is a fact. Okay, and that is connected because of illusion. We are unable to see the things as they are. Right? तो हमें जो लगता है, maybe it may not be right vision. Right? And for that, mutual consultation or contact with some people, discussing something, कि मुझे लगता है, ठीक है? That to some small extent, it may clear your illusion to certain extent, right? Never impermanence. This is another thing. Anything in the world is impermanent, except the soul. पूरी दुनिया में आत्मा के सिवा हर कोई चीज परमानेंट नहीं है. नहीं है मतलब नहीं है. You cannot do anything. God has created this world like this. World is like that. Other than this, nothing is permanent. And when you try to keep it permanent, अब आप कुदरत से विरुद्ध ट्राई कर रहे हो कि मेरा ऐसा ही हो, मेरे बाल सफ़ेद न हो, तो तुम्हें कोई पूछता नहीं है. ठीक है ना? तो जो nothing is permanent, that helps us a lot. Whatever, even misery is not a permanent, even happiness is not a permanent. So this is the nature's law, right? Accepting these small things helps us a lot. Then uniqueness of experience, we have already discussed this. Everybody is a unique personality, correct or not? Everybody is unique. So everybody sees the world differently. ये बहुत सिंपल लगता है, मगर ये अप्लाई करना बहुत वो है. तो किसके साथ मतभेद नहीं होगा, उसको ऐसा लगता है इसलिए वो बोल रहा है. देखिए स्मॉल वेरी सिंपल एग्जांपल, आप सबके पास मोबाइल है, ठीक है ना? आप नोट डाउन मत करो, मैं पूरी बुक दे देता हूँ आपको, आप पढ़ना, ठीक है? एक दिन में केवल एक चैप्टर पढ़ना, 2 3 पेज के चैप्टर है, वेरी सिंपल. बट एवरी सेंटेंस इज इम्पोर्टेंट. आई कैन गारंटी, आई हैव एडिटेड दैट बुक, राइट? एक वाक्य उसका वो है, राइट? तो दैट यू कैन रीड इट, एक महीने में ख़त्म हो जाएगी. 27 चैप्टर्स सर, ओनली 2.5 page, 3 page, that's all, right? So that is why everybody sees the world differently. आपके पास मोबाइल है, आप सब मेरा फोटो निकालोगे तो अलग अलग आएगा, नहीं आएगा? अलग आएगा, because it is from a different perspective, different view. That is how the people see the world in a different position. People see the problems differently. इसीलिए कई बार आप कोई प्रॉब्लम है, आप डिस्कस करो किसी से, तो वो प्रॉब्लम को दूसरी तरफ से देखेगा वो, ठीक है ना? तो आपको हेल्प मिलेगी, राइट? तो इसलिए डिस्कसिंग द प्रॉब्लम इज ऑल्सो एन इश्यू एंड ए गुड थिंग. अभी तो फोन है, हाँ, आप इतने लोग हैं, आप में अगर किसी के साथ 2-4 जन के साथ आपका अच्छा लगा आपको, यू कीप कॉन्टेक्टिंग देम ईच अदर. दिस इज द प्लेटफॉर्म, राइट? फ़ोन करो यार, तुम्हें प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हो, ठीक है ना? तो ऐसा, दिस सेव्स लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी फॉर अस, राइट? सो देन डाइट, another thing, he talks about spirituality, but everywhere, as a principle, your health is very, 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 very important, correct or not? So you have to take care of your health, take care of your energy level, and observe yourself. कि मैं मेरी हेल्थ को मैं ऑब्जर्व करूं तो कब तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं. Then you have to remedy it. Institution is not responsible for your health. Remember, they give you salary, sir. Correct or not? Your health is your lookout. ठीक है? I give small example. ठीक है? मैं जब मैंने पहली बार ब्रांच में हुआ, मैंने देखा कि सैटरडे को किसी के साथ झगड़ा हो जाता था मेरा, सर, सैटरडे को.
2-3 बार हुआ, पता चल गया मुझे, अरे साला सैटरडे में क्या है, वाई ऑन सैटरडे। मैंने कहा मैं एक टाइम खाता था, ठीक है, तो गुस्सा आ जाता है शाम को 4-5 बजे, टाइमिंग भी मैंने मार्क किया, कुछ 4-5 बजे ही होता है, राइट। तो किसी को झाड़ देंगे, कोई के स्टाफ को बुला के, राइट, ठीक है। तो अरे यार, तो इससे शनिवार नहीं करना अच्छा है, ठीक है ना। वो जो प्रॉब्लम मैंने खड़ा कर दिया, फिर यूनियन आएगा, वो सब मैं कैसे सॉल्व करूंगा। बैंक में तो यूनियन का बहुत बड़ा त्रास था उस जमाने में, राइट। तो बिकॉज ऑफ दिस, लाइक यू ऑब्जर्व योर बायोलॉजी, राइट, टेक केयर ऑफ इट। मेनी ए टाइम्स यू फॉरगेट टू टेक प्रॉपर न्यूट्रिशन बिकॉज यू आर कंटिन्यूसली, बिकॉज यू आर थिंकिंग एज ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आपका थिंकिंग बंद नहीं होता है। इसकी वजह से आपको, मैनी ऑफ यू मे हैव ऑब्जर्व्ड कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जब आप प्रिंसिपल होने के बाद आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ी बिगड़ती है, आप मार करना, ओके, बिकॉज तुम्हारा ब्लड यहाँ ही चला जाता है, यहाँ तो जाता नहीं है। समझ गए? इट रिक्वायर्स प्रॉपर ब्लड फ्लो, नो, ठीक है ना। तो ये सब इश्यू है, तो यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ। मानिए कि आपको देखिए, हर एक को कैबिन देती है मैनेजमेंट, कुछ खाना रखो अंदर, बेशरम होके खाओ, समझ लो आप, ठीक है। थोड़ा कुछ खा लिया तो हो जाए। मुझे लो बीपी हो गया था, आई टेल यू, फर्स्ट ब्रांच मैनेजरशिप में। तो मैं फिर 3-4 महीने फिर मैं डॉक्टर पर, उसने कहा कि लो बीपी, देयर इज नो डिजीज कॉल्ड लो बीपी। तो तुम्हारा लो बीपी क्यों हो गया? कोई रोग ही नहीं है, हाई बीपी का रोग है ना, लो बीपी का कहाँ है। तो वैद्य के वहाँ मैं गया, उसने बोला कि तुम रहो यहाँ पर तो मैं तुम्हारी दवा करूँ। फिर उसने ढूंढा कि तुम खाना भूल जाते हो, बस, दैट इज योर ओनली थिंग, दैट यू आर कॉन्स्टेंटली एनग्रोस्ड। तुम खाना भूल जाते हो, भूखे हो, तुम्हें भूख का एहसास नहीं होता है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारे लॉस ऑफ एनर्जी होती है। तो यू आर ऑन द सिमिलर जॉब, प्लीज टेक केयर ऑफ इट, राइट। सो दैट इज, तो डाइट तो कौन से अपना अपना अलग अलग खाना होता है, ठीक है। तो हर एक के हिसाब से आपको देखना है कि मुझे कौन सा फूड सूट होता है। अकॉर्डिंगली यू कैन डिवाइज योर थिंग्स। Independence, interdependence, that we have discussed in the role, that this life itself is a interdependent. You cannot work in solo. किसी की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो किसी से संबंध मत बिगाड़ो, कभी न कभी ज़रूरत पड़ने वाली है। People have a nuisance value. कुछ नहीं, अगर हेल्प नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम तो क्रिएट करने की उसमें ताकत है या नहीं है, राइट। देन इकोनॉमी एक्टिविटी, देखिए पूरी एक्टिविटी इकोनॉमिक है, इज ए रियलिटी। आप प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन हुए हो तो कौन है स्कूल बनाता है केवल फिलॉन्थ्रोपी के लिए? वेरी रेयर पीपल। इट हैज़ टू सस्टेन तो होना पड़ता है ना। लॉस मेकिंग कहाँ तक चलेगी? से 5 years 6 years अल्टीमेटली, राइट। तो ये सब इसमें आता है, बट नेवर डू which is highly unethical, that will create problems, right। जो इमेज बिल्डिंग जो है, इमेज बिल्डिंग एंड मॉरलिटी वो परस्पर विरुद्ध है। एक बार लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है सोसाइटी में, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीबिल्ड। तो थोड़ा ध्यान रखना है। इवन यू कैन काउंसिल योर ट्रस्टीज ऑल्सो समटाइम, इमीडिएट फास्ट, एनीथिंग विच इज़ फास्ट, शॉर्टकट जो है ना, वो शॉर्टकट इज ए शॉर्ट सर्किट, ब्लास्ट होता है हमेशा। शॉर्टकट के बजाय थोड़ा, एंड दैट यू हैव ए रोल। आप अच्छी भाषा में कह सकते हो कि भाई देखिए मैं वसंत के साथ काम करता हूँ, तो मैं कई बार उनको फीडबैक तो भाई ये इमीडिएटली नहीं करने जैसा, थोड़ा सेकंड गियर में रखो, सीधा टॉप गियर में काम नहीं कर सकते हैं, लाइक दैट, राइट। बट देन इकोनॉमी ये सब रहेगा, राइट। कंपटीशन हमेशा रहेगी, राइट। यू कैनॉट किल द कंपटीशन, राइट। So that will help us a lot. Human energy we have already discussed, right? ये limited है हमेशा। अब ये important, most important thing, husband and wife, हाँ, nearest role, correct? तो उसमें तो पूरा सेशन हो सकता है। दादा के साथ बहुत बात हुई। उनकी एक बुक है सनातन सुख, आप पढ़ना,
नेट पर भी मिल जाएगी फ्री PDF, नहीं तो मैं भी आपको भेज सकता हूँ। तो उसमें देयर आर मेनी इश्यूज एंड इट इज़ वंडरफुल। उसकी 1 मिलियन से ज़्यादा कॉपी गई है, मोर देन 1 मिलियन पीपल हैव लाइक्ड इट सो मच। बट इसमें यहाँ पर ये कहते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ उनका हमेशा विरुद्ध स्वभाव होता है। एज ए रूल, इफ ए पर्सन इज जनरस, the wife will be miser. If the husband is healthy, then wife will be weaker. You mark this. Okay? If husband is slow, wife will be fast, like my wife. I call her express. मैं लोकल हूँ, हमें चलते हैं तो मैं उनके पीछे चलता हूँ, मैं इतना तेज चल ही नहीं सकता हूँ. So I tell you, right? तो हमेशा ये कुदरत ने, he has observed this, कि because both the things are necessary. That is why nature makes you mate. आप में जो गुण है उनमें नहीं है, उनमें जो गुण है आप में नहीं. अब दो मिलके, if you accept simple truth, 90% of problems will be solved, right? आपके कॉम्प्लीमेंट्री एट्रीब्यूट होने के कारण ही अट्रैक्शन होता है. That is why you decide कि I want to marry this one. अंदर क्या है? विरुद्ध गुण होते हैं. अरे दो मिलके अगर इतना सनातन सत्य है जो नेचर का वो समझते हैं तो पूरा लाइफ एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं. ठीक है, ये चैप्टर आप पढ़ना, बहुत अच्छा है. एंड दिस इज प्रूवन रिसर्च. आप आपकी खुद में देख लो, आपको आपके जैसा आपका हस्बैंड में और आपके में टोटल डिफरेंस ही होगा. ठीक है, तो इसलिए एडजस्टमेंट इज नेसेसरी एंड एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी एंड विच यू एक्सेप्टेड ऑलरेडी, राइट? आई रिमेंबर सरू रांगणेकर, देयर वाज वन मैनेजमेंट थिंकर, हाँ, वेरी सीनियर. हम जब छोटे तो उनका पढ़ते, उसने उसको सम लेडीज कंप्लेंट. देखिए मैं फेमिनिस्टिक बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट कॉमन सेंस. सर लेडीज ने कंप्लेंट किया कि हमारे हस्बैंड सुपीरियरिटी दिखाते हैं, दे ट्राई टू बिकम सुपीरियर. तो सरू रांगणेकर साहब ने कहा, ये 4-5 लेडी है, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा से हाइट में क्या ऊंचा है या नीचा है? क्या होता है? क्या होता है? टॉलर. दैट इज द रीजन व्हाई यू सिलेक्टेड ए टॉलर पर्सन देन यू. He said, this is your own selection. A person who is more qualified than you, right? Then only you fight, and then you complain. This is your own selection, right? So enjoy that, correct or not? Rather than repenting, this is the right thing you have done. You are never doubt your own selection. You have done a right thing. Your parents have done a right thing. And now just because of this some Western thinking, you think this, that. This is a foolishness. These Western people, they are so unhappy. No life like that, no marriage life, nothing. So many people I know. ठीक है ना? तो then law of retribution, we have discussed this. कोई भी कार्य का बदला मिलता है. दादा भगवान का एक very revolutionary statement है कि God has not created this world, God is not running this. Very, very revolutionary, but he wanted to say something कि you are responsible for what you get, right? God is a impartial thing. Because he is impartial, ये किसी को partiality करेगा नहीं. तो तुम्हारा जो कुछ भी हुआ है तो law of retribution is there, remember, and know this. Law of limits, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है. Very good rule. आप सबने दरिया तो देखा है ना, सी, हाँ, भरती की कहाँ तक आती है? देयर इज ए लिमिट. ओट की लिमिट होती है कि भाई ओट 1 किलोमीटर जाएगी, फिर उससे आगे नहीं जाएगी. भरती शायद थोड़ा 100 मीटर्स आएगी, इतने आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी. तो एवरीथिंग इन द नेचर फॉलोज दिस रूल ऑफ ओशन, टाइड एंड एब. कोई भी कितना भी सुख हो, याद रखना, एक हद के बाद पैराबोलिक ग्राफ कहते हैं भंडारी साहब, वो क्या बोलते हो, मैं भूल गया. हाँ, ऐसा
ये नेचर में पूरी पैटर्न है, दिस इज द पैटर्न इन द नेचर। एनीथिंग, आपकी बीमारी हो, कुछ भी हो, सुख हो, दुख हो, दिस इज दिस पैटर्न। ये पैटर्न याद अगर नहीं रहे तो आप दरिया की पैटर्न याद रखो कि उसका वो वेव्स बढ़ते बढ़ते एक हद तक बन जाएगी, नहीं तो फिर वो सिटी पूरा वलसाड़ सिटी डूब जाएगा। नहीं तो जैसा है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं नेचर में। हाँ, ये पूरा लॉ ऑफ लिमिट्स है, सैंक्टिटी ऑफ वेल्थ। एक चीज़ इसमें मैं कहना चाहूँगा, मैं एज ए बैंकर, पैसे को बहुत संभाल के रखना। नेवर ट्राई टू अर्न मनी आउट ऑफ मनी। समझ गए? पैसे में से पैसा कमाना सबसे बड़ा रिस्क है, आपको दिखेगा नहीं। और मेरे अनुभव से बताता हूँ, टीचर आर मोस्ट विक्टिम सर। टीचर को कोई भी उसको छल सकता है। कई टीचर मैंने देखा है, अरे मैं दे दूंगा, तुम एक साल में डबल दे देंगे पैसा। प्लीज रिमेंबर दिस। कई टीचर्स मैंने देखा है, फिर मेरे पास आएंगे, सर ये अरे तुम गए ही क्यों? हम तुम्हें साल में 8% से 8%, 6% देते थे, अब तुम महीने का 6% लेने गए तो डूबोगे ही डूबोगे। कोई भी बिजनेस में 20% से ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है, 15 भी होता है, 10 भी होता है। अभी तो ज़माना जो है ना आईटी का, ऑनलाइन सेलिंग, इतना प्रॉफिट नहीं होता है। अब जिसमें आपको 5%, 10% का 15 और 25% प्रॉफिट है, उसको आप 30% पर लैंडिंग करो तो क्या होगा? ठीक है ना? फिर आपका अकाउंट रखता है, अरे साहब आपने ₹1,00,000 दिए थे, अब तो 1,30,000 हो गए। आप रखो यार, रखो, आपको तो नहीं चाहिए ना, पगार चालू है प्रिंसिपल की। तो फिर ऐसा करके कर 10 लाख हो जाएगा 4 साल में। यू बिकम वेरी हैप्पी, वन डे एवरीथिंग विल गो। तो इट वॉज ओनली शेक्सपियर का है। प्लीज रिमेंबर, मनी, अर्निंग मनी आउट ऑफ मनी इज वेरी रिस्की प्रपोजिशन। इसके बजाय सैलरी लेना अच्छा है, काम करना अच्छा है, और जो नॉर्मल रिस्क है वो लेना है। ज़्यादा रिस्क मत लीजिए कि होता नहीं है, नहीं होता है। ગુજરાતીમાં કહે છે આંકડા પર મધ લાગતું નથી। મધ क्या હોય? हनी, हनी कॉम, अरे रिस्की प्लेस होता है, समझ लीजिए बस एक सेंटेंस में। तो आपको लगेगा कि नहीं 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 आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, राइट? मैनी लैंड बोरोवर्स आई हैव सीन रियल एस्टेट स्पेशली, क्या करते हैं? दे वेट, समटाइम्स ऐसे करते हैं, स्पेशली सीनियर सिटीजन को पैसा लेते रहते, दे वेट फॉर द पर्सन टू डाई। आई टेल यू, ऐसे भी लोग हैं। हाँ ठीक है, घर को बताएगा नहीं, दे देगा 25 लाख रुपया। ठीक है, तो प्लीज़ रिमेंबर, अगर स्ट्रेस होगा तो फिर आप आपकी ड्यूटी प्रिंसिपल तर की नहीं बजा सकोगे। स्ट्रेस है तो कहाँ से बजाओगे, राइट? देन ह्यूमन रिलेशंस, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच। हाउ मच मोर टाइम आई टुक? ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। Purpose of this session was happy principal, right? I'll be very happy if you are, it improves your happiness level. You have all the right. देखिए, आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो, फिर भी दुख होता है, that can be remedied. वो भगवान ने नहीं भेजा है। आप गलत कर रहे हो और दुखी होते हो तो आपके कर्मों का फल है। But there are 80% people जो कुछ भी गलत नहीं करते, फिर भी अंदर उसको दुख रहता है। That can be remedied with proper knowledge, right? वो प्रारब्ध का दुख नहीं है, दादा भगवान का रिसर्च है। सर्टन थिंग्स प्रारब्ध का है, सर्टन थिंग्स अंडरस्टैंडिंग का है। तो अंडरस्टैंडिंग का दुख जो है करीब 80% होता है। दैट मच कैन बी रेमेडीड, अदर थिंग कैन नॉट बी रेमेडीड। यू हैव टू गो विथ इट। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। या Thank you so much.